Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as professor in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. What is irrigation frequency and what is irrigation interval and what is the relevance of this irrigation frequency with the crop and the soil and the climate? Actually, the application of water for the growth and development of crop is called irrigation. So this is just a water application, and this application of water depends upon many factors. Number one, what is the crop nature? Some crop require more water, some require less water. For example, rice require more water and sorghum require less water. Another factor is what is the stage of the crop. For example, at active vegetative stage there is a high dry matter production, more photosynthesis, more nutrient requirement. That's why water requirement is very high. Another factor is what is the soil type. If soil is sandy, so water holding capacity is very less. So that's why we have to give more irrigation. If soil is heavy textured or medium textured, so it can retain the water for a longer period, or we can say in other words, water holding capacity is more. If soil can retain water for a longer period, then irrigation requirement become less. Another factor is climate. How climate influence? Climate means what is the temperature during the crop season, what is the rainfall. If temperature is more, definitely evapotranspiration is high, water loss is more. If rainfall is frequent, then irrigation requirement is less. So it means when we give the irrigation, there are so many factors. What is the crop, what is the stage, what is the soil type, what are the weather conditions during crop season. So irrigation interval, when we give one irrigation then another irrigation, so this gap or this time interval is called irrigation interval. अगर हम एक इरिगेशन मान लीजिए 5 मई को देते हैं और दूसरी इरिगेशन हम 20 मई को देते हैं, तो 20 मई और 5 मई का अंतर हुआ 15 दिन. सो इरिगेशन इंटरवल इज 15 डेज. सो time difference or days difference between two irrigation is called irrigation interval, and this irrigation interval depends upon ये जो मैंने फैक्टर बताए कि क्रॉप की रिक्वायरमेंट क्या है. क्रॉप की रिक्वायरमेंट अगर बहुत ज़्यादा है तो वाटर का लॉस जल्दी होगा, हमें जल्दी इरिगेशन देनी पड़ेगी. अगर सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है तो जो हम पानी देते हैं सारा ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे चला जाता है, मैक्रोपोर्स के थ्रू नीचे चला जाता है. माइक्रोपोर में कम वाटर रिटेन रहता है, और जो वाटर माइक्रोपोर्स में है दैट इज अवेलेबल टू द प्लांट थ्रू कैपिलरी राइज. सो माइक्रोपोर्स कितना है ये डिपेंड करता है, और ये डिपेंड करता है कि उसका सैंड कितना है, क्ले कितना है. अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग है. सिमिलरली अगर हाई टेम्परेचर चल रहा है तो ईटी डिमांड ज़्यादा होगी, हमें जल्दी जल्दी इरीगेशन देना पड़ेगा. सो जो हम इरीगेशन दे रहे हैं उसका इंटरवल कितना है, कम या ज़्यादा है. अगर इरीगेशन इंटरवल कम है तो इसका मतलब हमें इरीगेशन जल्दी जल्दी देनी पड़ेगी. सो इन दिस केस वी से द इरीगेशन फ्रीक्वेंसी इज हाई. फ्रीक्वेंसी मीन्स, फ्रीक्वेंसी माने क्या होता है, किसी चीज की अकरेंस. अकरेंस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. फ्रिक्वेंटली कोई चीज कितनी बार हो रही है, जल्दी जल्दी कितनी बार हो रही है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. सिमिलरली इन केस ऑफ इरीगेशन फ्रीक्वेंसी इज हाउ फ्रिक्वेंटली वी आर गिविंग इरीगेशन. जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी इसका मतलब हम जल्दी जल्दी इरीगेशन दे रहे हैं, और जल्दी जल्दी इरीगेशन दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इरीगेशन टाइम इंटरवल बहुत कम है. अगर हम मान लीजिए एक क्रॉप में वीकली इरीगेशन देते हैं कि हर वीक में एक इरीगेशन देनी पड़ती है, और किसी क्रॉप में मान लीजिए फोर्टनाइटली इरीगेशन देनी पड़ती है, मतलब 15 डेज इंटरवल पे, तो जो वीकली इरीगेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी एज कंपेयर टू जिसमें हम फोर्टनाइटली 15 दिन पे इरीगेशन दे रहे हैं. सो दिस इज द रिलेशन इन इरीगेशन इंटरवल एंड इरीगेशन फ्रीक्वेंसी. इरीगेशन इंटरवल कम है तो इरीगेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी. हम इसका मतलब हम चौथे दिन पे इरीगेशन कर रहे हैं या 5वें दिन पे कर रहे हैं, छठे दिन पे कर रहे हैं, इसी से इरीगेशन फ्रीक्वेंसी डिसाइड होगी. अब ये जो इरीगेशन फ्रीक्वेंसी है ये किस पे डिपेंड कर रही है कि उसकी वाटर रिक्वायरमेंट कितनी क्रॉप की है, क्या है, और वाटर कितनी जल्दी लॉस कर जा रहा है. और वाटर लॉस कैसे कर सकता है, तो ग्रेविटेशनल वाटर लॉस हो जाए, नंबर वन ये हो सकता है. सेकेंडली इट में बी लॉस थ्रू एवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, ईटी. तो ईटी एंड दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और ग्रेविटेशनल वाटर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अब ईटी को जो फैक्टर डिसाइड करते हैं, फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे हैं ईटी को, फॉर एग्जांपल विंड स्पीड, फॉर एग्जांपल ह्यूमिडिटी, सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, ऑल विल अफेक्ट द इरीगेशन इंटरवल. तो ये इरीगेशन इंटरवल एक लोकेशन पे दो क्रॉप के लिए अलग अलग हो सकता है. जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी उसको हमें जल्दी जल्दी इरीगेशन देनी पड़ेगी, इसका मतलब वहाँ इरीगेशन इंटरवल कम होगा और इरीगेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी. सो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ राइस इरीगेशन फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, एंड इन केस ऑफ सॉर्गम हम एक इरीगेशन देने के बाद 15-20 दिन बाद इरीगेशन दे सकते हैं. इरीगेशन इंटरवल इज लॉन्ग एंड इरीगेशन फ्रीक्वेंसी इज लेस. तो ये इरीगेशन इंटरवल है और इरीगेशन फ्रीक्वेंसी है. तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा किस क्रॉप के लिए इरीगेशन इंटरवल ज्यादा होगा, जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम है. सॉर्गम है जैसे, पर्ल मिलेट है, इनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम है,
हम देर से इरिगेशन देते हैं तो इनकी इरिगेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल राइस है या पोटैटो है, इसमें हम जल्दी जल्दी इरिगेशन देते हैं तो इरिगेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो ये जो फैक्टर है इरिगेशन इंटरवल और इरिगेशन फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द नंबर वन type of the crop, stage of the crop, what is the soil type, and what is the climate. So all these parameters decide the irrigation interval and the irrigation frequency. क्योंकि अब देखिए वी हैव नो कंट्रोल ओवर द क्लाइमेट, क्लाइमेट के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। वी कैन नॉट चेंज द सॉइल टाइप, जो सॉइल है क्ले सॉइल है या सैंडी है उसको हम चेंज नहीं कर सकते टेक्सचर को, बट वी कैन मैनिपुलेट सम एग्नोमिक प्रैक्टिसेस विच कैन स्टोर द वाटर फॉर ए लॉन्गर पीरियड। फॉर एग्जांपल मल्चिंग, अगर हम मल्चिंग कर दें तो वाटर क्या है, स्टोरेज ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा समय तक रहेगा। अगर हम डस्ट मल्चिंग कर देते हैं तो कैपिलराइज चेक हो जाएगी, तो सॉइल से एवापोरेशन कम होगा। तो इन अगर मेथड्स को हम अपनाते हैं जो वाटर सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज कर सकें, उसके थ्रू हम इरिगेशन फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं, इरिगेशन इंटरवल को बढ़ा सकते हैं, एंड वी कैन सेव द इरिगेशन वाटर। थैंक यू वेरी मच।